I started playing football when I was 7. At the age of 11, I gave trial at Mohun Bagan. Out of 800, I got selected. तो आपका शुरू से पहला ही था कि मेरे को फुटबॉल में ही कुछ करना है? एक पता नहीं कैसे, लेकिन बहुत अर्ली स्टेज से मुझे ये था कि मुझे कुछ भी करना है, मुझे जॉब तो नहीं करना है. What was the backup plan? I always want कि एक ही प्लान रहे. There was no plan B. कामयाब नहीं होगा तो क्या होगा ये मैं नहीं सोचूंगा. कामयाब करना है इसको. कामयाब करना है, मतलब कुछ भी हो जाए. Another big milestone of your life, meeting the great Ronaldinho. I was invited. मेरा एक टेबल बाद रोनाल्डिनियो बैठा है. मैं इधर देख रहा हूँ. He was insane. He has an aura. ये चुल आपके दिमाग में कब से आया कि content creation करना है? How much money can a average Content creator make? हाँ, content Yeah, creator right. make. So Today's guest is really very close to me. He's like a younger brother. Sarthak Bose isn't just chasing his dream of playing for the ISL. He is living the grind every single day. He has made the great legend Ronaldinho. But what makes him special is his discipline, his love for the game, and how seriously he takes his fitness. I have seen his journey up close, and I am proud to present it to you. Here is Sarthak Bose on Thinking Deep. So Sarthak, welcome to our show. It's been an honor and a pleasure to have you. तो बताओ क्या चल रहा है लाइफ में? thank you so much first of all for having me. और सब कुछ बढ़िया चल रहा है. Let's see, and I'm really looking for this podcast. So let's see how it's going. पॉडकास्ट शुरू होने से पहले आप बोले थे कि दिस इज योर फर्स्ट ऑफलाइन पॉडकास्ट, राइट? यू हैव डन वन बिफोर. कहाँ पे किया था? Yes, मैं एक YouTube चैनल पे किया था. चगदे फुटबॉल. That's related to mainly football. तो वो ऑनलाइन किया था. And this is my offline podcast. First time my offline podcast. You can say. Great. Before we start this conversation, I would like to share something with my audience. कि when I started content creation, roughly around it's been around 5 to 6 months. Yeah, precisely 5 से 6 महीना हुआ होगा. And Sarthak is one of the few people who is a influencer and who messaged me in the beginning कि भैया आपका podcast देखा, your clips are really good, your videos are very good. So that really meant a lot to me because because this is a very new thing to me, content creation. Whatever be it, podcast बोलो या कुछ भी बोलो, social media like YouTube, Instagram, this is a complete new thing to me. And especially when you see someone who is doing tangibly big in social media, himself messaging me out of a clip, that's a very big thing to me. So thank you once again, Sarthak. I would like to tell this on camera. That's my pleasure because I saw one of your podcast and मुझे काफी अच्छा लगा. मैं सच बता रहा हूँ कि मैं पॉडकास्ट मेरे को बहुत अच्छा लगता है सच में. आई ऑफन वॉच पॉडकास्ट और मुझे वो इतना अच्छा लगा कि मैं मैसेज करता हूँ. ऐसे नहीं कि मैं बस अच्छा लगा इसीलिए मैसेज किया. मैं चाहता हूँ कि कोई भी चैनल हो वो ग्रो करे और भी अच्छा ग्रो करे. तो मतलब शुरू से मुझे भी यही था कि एक बार आपका पॉडकास्ट चैनल भी आ जाए, उसके बाद मैं भी पॉडकास्ट कर लूं. फिर सी आई एम हियर एज वेल. सो definitely, and this is a manifestation 100% as well. So that's my pleasure of being here. ये शूटिंग शुरू करने से पहले हम लोग बहुत देर तक बातचीत किए कि what are the strategies and growth patterns, कैसे, because right now Instagram में आपका 30 के क्रॉस हो गया. 33,000 and relatively within a very short period of time. And YouTube is also doing good. So, it's 22,000 I guess. Very good. So Sarthak, tell us about your childhood. आपका शुरुआत कहाँ से हुआ, कैसे हुआ? Because in school, like you said that before the conversation, that a big part of your inspiration was your father. तो वो बारे में आप थोड़ा बात कीजिए. Right. So I started playing football when I was 7. So I used to go with my father. और पापा के साथ. पापा ऑलवेज चाहते थे कि मैं अच्छा करूँ फुटबॉल पे क्योंकि बाबा खुद फुटबॉल खेलते थे. और उनके साथ ही मैं पहले जाता था और धीरे धीरे वहाँ से एक कैंप ज्वाइन किया. उसके बाद प्रोफेशनली ज्वाइन किया. When I was at the age of 11, then I gave trial at the National Club of India, Mohun Bagan. अच्छा. Yes, so वहाँ पे out of 800 के आसपास ट्रायल पे प्लेयर्स आए
out of 800 I got selected, and then I played Mohun Bagan under 12 at the age of 11. अच्छा. Then after that I joined East Bengal at the age of 13. So the early stage always मतलब अच्छा ही निकला है, मतलब अच्छा. वहाँ से सपोर्ट मिला है घर से भी और वहाँ से अच्छा ही निकला है. तो एट द एज ऑफ 13 मैं मोहन बागान और ईस्ट बंगाल जूनियर पे खेल चुका था. तो अच्छा ही मतलब तब तक घर वालों को भी कहे कि नहीं ये फुटबॉल पे ही आगे कुछ करे और फुटबॉल रिलेटेड ही करे, तो घर से भी सपोर्ट अच्छा ही मिला. And I reckon since your father was playing football himself, yep. तो घर से सपोर्ट आपको शायद थोड़ा ज्यादा मिला. Yes, very much. Since childhood मतलब मुझे कोई ऐसे प्रेशर नहीं था कि पढ़ाई पे सिर्फ फोकस करना है और It's बस. a great and very exceptional thing. Yes, that's very exceptional I must say, because ऐसा नहीं है कि बस मार्क्स ही चाहिए, ऐसे कुछ नहीं था. मतलब खेलता था फुटबॉल, लाइक पता नहीं ये प्रमोट करने वाला बात है कि नहीं, बट आई यूज्ड टू गो टू स्कूल लाइक 10 days इन होल ईयर. अच्छा. तो मतलब ऐसे ही स्कूल जाता था 10 दिन 20 दिन. तो अटेंडेंस में ये सब में नहीं, क्या था कि मैं बचपन में जब मैं मोहन बागान पे था, इस बंगाल पे था, अच्छा. वो एक लेटर लिख के दे देते थे स्कूल पे कि ही इज अवर प्लेयर, तो प्रैक्टिस रहेगा तो वो स्कूल ज्वाइन नहीं कर पाएगा, तो वो लेटर लेके स्कूल को दे देता. लेकिन तो वो चल जाता है. और हाँ, तो स्कूल में भी फुटबॉल थोड़ा बहुत खेल लेता था. और ऐसे फुटबॉल रिलेटेड एक अच्छा होता है कि 10 दिन गया, 10 दिन में ही बस 5 दिन फुटबॉल ही खेला स्कूल पे. सो इट वाज गुड और घर में भी काफी सपोर्ट मिला इससे. तो एकेडमिक्स राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऐसा दिमाग में नहीं था कि, बिकॉज ट्रेडिशनल फैमिलीज में क्या होता है कि हम लोग एक पैटर्न में सोचते हैं. 10th के बाद ये करना है, इतना मार्क्स आया तो वहां एडमिशन लेंगे, 12th में अगर इतना मार्क्स आया तो उस कॉलेज में जाएंगे, देन ये जॉब वो फलाना व्हाटएवर. तो आपका शुरू से पहला ही था कि मेरे को फुटबॉल में ही कुछ करना है. राइट, परफेक्ट. एकदम शुरू से ही मुझे मतलब ये पता नहीं कैसे, लेकिन बहुत अर्ली स्टेज आई कैन से लाइक 7-8 जब मैं क्लास में था, तब से मुझे ये था कि मुझे कुछ भी करना है, मुझे जॉब तो नहीं करना है. मतलब ये पता नहीं कहाँ से घुस गया दिमाग में, बट ये घुस गया. अच्छा. मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट. अच्छा. मतलब मैं ये प्रोमोट नहीं कर रहा हूँ. हाँ. करना करो, मतलब जो अच्छा लगता है करो. लेकिन मुझे ये घुस गया था. सो मार्क्स को लेकर कभी भी उतना सीरियस रहा नहीं. और ऐसा था कि स्कूल कॉलेज पे जैसे भी मार्क्स आए, ठीक है, घर पे भी ठीक है, बस फुटबॉल में अच्छा करना है. और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं फुटबॉल में एकेडमी में बहुत मतलब शहर चेंज होता रहता था. अच्छा. कि एक बार ये शहर, एक बार वो शहर, जहाँ पे एकेडमी है, जहाँ पे लीग है, जहाँ पे टूर्नामेंट है. तो इसीलिए एकेडमी में भी, पढ़ाई में भी बहुत ही मतलब वैसे कुछ हुआ नहीं और वैसा कुछ मतलब इम्पोर्टेंस भी नहीं दिया. लेकिन हाँ, देना चाहिए, ऐसा नहीं कि देना ही नहीं चाहिए, सिर्फ खेलना चाहिए. लेकिन मैं उतना नहीं दे पाया. सो आई केप ट्राइंग इन फुटबॉल. और ऐसा नहीं कि अभी मैं एकदम सक्सेसफुल हो गया हूँ. वी ऑल आर स्ट्रगलिंग ऑलवेज. सो अभी भी मैं कोशिश कर रहा हूँ इससे भी आगे जाने का और बेटर करने का. सो लेट्स सी क्या होता है. तो मार्क्स कैसे आते थे स्कूल में? बढ़िया आते थे? आई कैन से कि आ जाते. इतना मतलब एकदम बेकार स्टूडेंट नहीं था, मतलब थोड़ा बहुत अच्छा ही आ जाते थे. एवरेज और अबव एवरेज ऐसा कुछ? हाँ, मतलब मैं वो 70-80% वाला था. Great. मतलब स्कूल पे. तो अच्छी बात है, because doing a full time playing football full time, you're managing 70-80%. I don't know, but हाँ मतलब ऐसे एकदम बेकार नहीं था. लेकिन जितना ऐसे that's easy in class 5 to get 90%. तो धीरे धीरे कम हो जाता है. तो ऐसा मेरा भी था कि धीरे धीरे कम होता गया. लेकिन हाँ, क्लास 10 में भी आई गॉट 75%. धीरे धीरे वो स्लो डाउन होता गया. बट स्कूल में थोड़ा बहुत अच्छा ही पढ़ाई में था. इसीलिए क्लास टीचर भी वैसे कुछ मतलब डायरेक्ट अटैक नहीं करते थे कि चलो स्कूल नहीं आता है लेकिन मार्क्स तो ले आता है. लेकिन हाँ, तो पढ़ाई में भी थोड़ा बहुत आ जाते थे. गुड. और आप कहाँ तक पढ़े? मैं ये कोई प्राउडली कहने का चीज है नहीं. अच्छा. वैसे, बट मैं कॉलेज ड्रॉप आउट हूँ. ओके. यस. सो आई गॉट एडमिशन कॉलेज. तो उसके बाद लॉकडाउन हो गया था. सो लॉकडाउन में ऑनलाइन एग्जाम्स होते थे. तो ऑनलाइन एग्जाम में बस ऐसे ही मतलब एग्जाम देते कि, और कॉलेज से भी वैसे ही मतलब नॉर्मली पास हो जाते. सो रियली मेरे को एक बार दिमाग में आया कि ऐसे ही पास हो रहा है तो क्या पॉइंट है, लाइक व्हाट इज द पॉइंट. तो हम क्यों बेकार मतलब ये कर रहे हैं. और ऑनेस्टली जब मेरा कोई जॉब का टारगेट नहीं है, मेरा फुटबॉल पे ही टारगेट है, तो मुझे लगता है कि जिसका पे ड्रीम हो जिस चीज पे, वही करना बेटर है.
मतलब ऐसे कोई सजेशन में नहीं दूंगा कि नहीं पढ़ना चाहिए, डिग्री नहीं चाहिए, सबका अलग अलग थिंकिंग है। मेरे ख्याल से मुझे मतलब फुटबॉल पे अगर ज्यादा फोकस करूं मैं तो मेरे को लगता था कि हमेशा बेटर होगा, तो इसीलिए मैंने सेकेंड ईयर पे ड्रॉप आउट कर दिया और फुटबॉल पे पूरा एकदम फोकस। कौन सा डिग्री कर रहे थे आप? मैं बीए कर रहा था, जनरल। मैं okay. आशुतोष कॉलेज पे था, विच इज लोकेटेड इन कोलकाता। तो उसके बाद ऑनेस्टली मेरा जो पढ़ाई है वो शिफ्ट हुआ। मैं 10 तक मतलब काफी अच्छा स्टूडेंट था, और मतलब ऐसे भी एकदम फुल ऐसा नहीं था कि एकदम पढ़ाई में कुछ नहीं करना है, मतलब ठीक है पढ़ाई को थोड़ा बहुत सीरियसली लेता था। लेकिन आफ्टर 10 आई वेंट टू ईस्ट बंगाल एकेडमी, एंड वो पहली बार मैं शहर से बाहर जा रहा था। उसके बाद वी आर फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, इन बंगाली फैमिली, तो शहर से बाहर नहीं गया पहले कभी, और उतना अकेला नहीं रहा, कैसे क्या करूं पता नहीं था। And you used to go alone or alone. So I have to join East Bengal Academy. So there was 30 players. So अकेला रहना, अकेले सब कुछ करना, सब कुछ नया था, तो पहले मुश्किल होता था ऑफ कोर्स, लेकिन आफ्टर दैट आई गॉट यूज्ड टू इट। और टू बी वेरी ऑनेस्ट तब मेरा स्कूल भी शिफ्ट हो गया था, मतलब इस शहर से पूरा उस शहर में शिफ्ट हो गया। और जब शिफ्ट हुआ तब जिस स्कूल में वहां पर एडमिशन लिया गया, वो स्कूल अपने आप से मुझे आर्ट्स दे दिया गया, क्योंकि उस स्कूल के साथ यही था कि मैं उनके स्कूल के लिए खेल दूं, क्योंकि वहां पर एक फुटबॉल टूर्नामेंट है इंडिया पे, शुभ्रोतो कप। अच्छा, दैट इज वेरी नोन टूर्नामेंट। सो वो खेल दो और उस कॉलेज में उस स्कूल में एडमिशन लेना है। सो वो लोग ही खुद से सब्जेक्ट दे दिया और आर्ट्स दे दिया। ऑनेस्टली मुझे 8-9 महीने तक पता भी नहीं था कि कौन सा सब्जेक्ट है मेरे मतलब 11 पे मेरा कुछ ऐसा हाल था, मतलब क्योंकि एकेडमी में सिर्फ फुटबॉल ही होता था, सेशन, जिम सेशन, प्रैक्टिस सेशन, एवरीथिंग। उसके बाद पढ़ाई नहीं, तो वहां से मेरा पढ़ाई का जो चेंज है वहां से हो गया। और मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं क्लास 10 तक जितना भी मैंने पढ़ा है स्कूल में, एवरीवेयर, ट्यूशन, मैंने उतना कुछ नहीं सीखा। वो एक साल में मैं अकेला रह के जो सीख पाया एकेडमी पे, क्योंकि वहां पर सब कुछ अकेला करना है। वहां पर कुछ भी हो जाए, बुखार हो जाए, कुछ भी हो जाए, अकेले करो, अकेले जियो, सब कुछ करो। ऐसा नहीं कि घर से दूर जाके हमको क्या पता चलता है, रियल वर्ल्ड के बारे में पता चलता है। मुझे लगता है वो असली दुनिया है। वहां से मुझे जो सीख मिला है। तो उसके बाद स्कूलिंग में हम फिर से कोलकाता शिफ्ट हो गया, स्कूल फिर से हुआ, लेकिन तब तक स्कूल का जो रिदम है, और ऑनेस्टली मतलब मुझे कुछ जो सब्जेक्ट था मुझे कुछ वैसे इंटरेस्ट था भी नहीं ऑनेस्टली, तो कुछ आता भी नहीं था, लेकिन चलो HSB पास हो गया अच्छे खासे। लेकिन उसके बाद आई थॉट कि नहीं, ये नहीं होगा, नॉर्मल फुटबॉल कंटिन्यू करते हैं। बट यहाँ पे आई हैव अ क्वेश्चन। सपोज when you dropped out of college, दिमाग में होता है ना, like what is the backup plan, what if this fails, अगर ये क्लिक नहीं किया तो फिर क्या होगा? Right. तो did you have a backup plan in your mind, या करना है मतलब यही फील्ड में करना है? Because as you said, you're from a middle class family. Yes. Probably आपका कोई family business था नहीं, तो कोई what was the backup plan, fallback option क्या था आपका? Right. मेरा ये पता नहीं कैसे माइंडसेट हो गया बचपन से कि मैं कोई ऐसे सोचता नहीं हूँ, मतलब ज्यादा सोचता नहीं हूँ कि बैकअप ये आई ऑलवेज वांट कि एक ही प्लान रहे। देयर वाज नो प्लान बी, मतलब कोई प्लान आता है तो एग्जीक्यूट कर लूँ, लेकिन ऐसे में करूँ कि आई थिंक प्लान बी इज लाइक द सेकेंड ऑप्शन। जब प्लान बी हम करते हैं तो प्लान ए से हम दूर हो जाते हैं, वो ठीक से एग्जीक्यूट भी नहीं हो पाता, क्योंकि आई बिलीव दैट। यस, कोई भी रास्ता हम चुने उसमें क्या होता है कि ऑब्स्टेकल्स आएंगे, 100% कुछ भी आएंगे, तो जब वो आएगा तब हमें लगेगा कि नहीं हो रहा है, चलो दूसरे पे चले जाते हैं। सो आई बिलीव दैट। तो मैंने कभी ऐसे सोचा नहीं कि इसमें नहीं करना है, और बचपन से मतलब बहुत पहले से जब मैं यही सोच रहा हूँ कि मुझे जॉब नहीं करना है, तो मैं उतना सोचता नहीं। मतलब कभी कभी अभी सोचता हूँ कि मैं क्यों नहीं सोचता था, सोचना तो चाहिए। मतलब सच में उतना पैसा भी नहीं है, कैसे कमाना ये भी सोचना चाहिए, लॉजिकल है। बट ऑनेस्टली मैं सोचा नहीं कभी, मतलब ये सच बता रहा हूँ, कभी ऐसे सोचा नहीं, बस गो विद द फ्लो, जो अच्छा लगा ऑनेस्टली करता रहा। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, लाइफ में सबसे मुझे लगता है इम्पोर्टेंट पार्ट होता है अपने दोस्त। Correct. और मेरा दोस्त जो मतलब बचपन से थे वो काफी सपोर्टिव थे, और मतलब ऐसे कोई
खराब दोस्त नहीं मिले मुझे। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। अगर मैं कोई दूसरा रास्ता में चला गया, कोई गलत वे में चला गया, वो एक बहुत बुरा चीज होता है, लेकिन वो कभी हुआ नहीं शायद। तो वो आई थिंक बहुत हेल्प किया मुझे कि ऐसे ना सोचूं मैं कोई दूसरा चीज। सो आई केप ट्राइंग दिस, और आई थिंक उससे मुझे बहुत हेल्प हुआ अपनी लाइफ में कि प्लान बी के बारे में ना सोचकर, कि अभी मैं जब बात कर रहा हूँ आपसे, अभी भी मतलब लाइफ में हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम रहता है। कभी भी नहीं होता है कि सब कुछ ठीक हो गया। तो जब बात कर रहे हो अभी भी लगता है कि अगर इसमें प्लान बी होगा तो अच्छा होगा। ऐसे बहुत सारा हम सोच सकते हैं। बहुत लोग बोला भी कि अगर ये कामयाब नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर ये नहीं मतलब कामयाब नहीं होगा तो क्या होगा, ये मैं नहीं सोचूंगा। कामयाब करना है, इसको कामयाब करना है, मतलब कुछ भी हो जाए। मतलब मेरा ख्याल यही है कि आप जो भी है, जब तक नहीं होता है करते रहो। देयर इज नो प्लान बी। मतलब मुझे अगर है कि अब चलो ये कर लेते हैं, नहीं तो कोई अच्छा जॉब कर लेंगे, चल जाएंगे, नहीं ये करना है तो यही करना है। मैं हूं ना, अभी तो जिंदा तो हूं, अभी एब्सोल्युटली करना है। तो मेरा यही थॉट था। तो आई थिंक दिस एवरीथिंग इज इन द माइंडसेट। तो माइंडसेट मुझे बहुत हेल्प किया। Historically, if we see people who have reached the so-called top in any field, कोई भी फील्ड आप पकड़ लो, for example, let us talk about cricket. दो कैरेक्टर हम पकड़ के चलते हैं, वन से सचिन तेंदुलकर, अनदर से MS धोनी। दोनों ही एकदम टॉप पे गए हैं, करेक्ट। सचिन तेंदुलकर का ऑप्शन बी कुछ नहीं था, वो 10th के बाद पढ़ाई छोड़ दिए बिकॉज ही वॉज कॉन्फिडेंट एंड हिज फैमिली वॉज ऑल्सो सपोर्टिव कि बेटा क्रिकेटर ही बनेगा, एंड ही वॉज ऑल्सो कॉन्फिडेंट कि मैं क्रिकेटर ही बनूंगा। वो सचिन तेंदुलकर बनेगा, भले ही उनको पता नहीं था, बट he knew that there was no plan B. Now let us come back to MS Dhoni. MS Dhoni, of course, all of us know that his primary thing was football. He was a goalkeeper. Yeah. And after that, his family pressurized him, and वो रेलवे में नौकरी करते थे, and cricket was not probably his only option. ठीक है, and because I heard in an interview, उन्होंने बोले थे कि मेरा फिटनेस अच्छा था, अगर क्रिकेट में मेरा नहीं होता तो मैं आर्मी में चला जाता, बिकॉज ही हैड। सो दीज टू पीपल, इफ वी कंसिडर, यू हैव ऑल द थिंग्स इन योर साइड, बिकॉज दैट इज अ वेरी अनकन्वेंशनल। दोनों ही सक्सेसफुल भले ही हो, बट Sachin Tendulkar's, the odds of a Sachin Tendulkar mindset, the odds of succeeding with this mindset is significantly more than the odds of succeeding with the other mindset. This is according to me, of course. Right. And as we can see, what you have is discipline, what you have is consistency, and of course you're growing at a very good rate, and I'm sure you'll reach great heights. Thank you. Yeah. So Sarthak, let us come back. आप बोले कि जब आप when you were playing for these big clubs, East Bengal, Mohun Bagan, under 12. Because उसके पहले you were in an amateur, you were playing in amateurish clubs, local clubs. वहां से when you transitioned into such a big franchisee, वहां का systems, वहां का वातावरण, वहां का management, how did it cause a shift in you? आप बोले कि I learned a lot, so discuss that learning. Right. So मैं यही बोलूंगा कि in India academic या फिर मतलब childhood development जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उतना अच्छा नहीं है फुटबॉल पे। मतलब अभी धीरे धीरे ISL आने के बाद थोड़ा थोड़ा क्लब है जो और भी अच्छा हो रहा है, लेकिन तब भी उतना अच्छा नहीं था। But there is a name, a big name. तो जब मैं कोई local, big name as in ISL? नहीं, big name as in East Bengal, Mohun Bagan, that's a big name. So for any footballer, any of us. So जब मैं एकेडमी पे गया, उधर बड़ा ग्राउंड, बड़ा स्टेडियम, पहली बार ये सब देख रहा हूँ, उसके बीच में खेल रहा हूँ, प्रैक्टिस हो रहा है सुबह, तो वो क्या होता है कि अपने आप एक कॉन्फिडेंट बिल्डअप होता है। वो फुटबॉलर ही समझ कि कोई स्टेडियम पे खेलना और कोई नॉर्मल ग्राउंड पे खेलना, दोनों में फर्क है, बहुत फर्क है। तो वहां से मुझे वो सीख मिला, एंड ऑफ कोर्स बेटर प्रैक्टिस एंड बेटर एटमोस्फियर, सब कुछ बेटर मिला। अभी शायद और भी बेटर हो गया है बहुत एकेडमी, बट यहाँ से मुझे सीख यही मिला कि जब तक मतलब वहां पे एक है कंपटीशन है कि मुझे बाकियों से आगे जाना है, बाकियों से मुझे अच्छा खेल के प्रूव करना है, नहीं तो मैं पीछे चले जाऊंगा। ये एक लाइफ का सीख है
मतलब नॉट एज लाइक कोई जेलसी है, कॉम्पिटिटिव नेचर, कॉम्पिटिटिव ये होना हेल्दी चाहिए, कॉम्पिटिशन, हेल्दी, कोई जेलसी नहीं कि ये मेरे से आगे निकल गया, बहुत दोस्त है मेरा मुझसे बहुत आगे निकल गया, लेकिन कोई जेलसी नहीं है, बहुत खुश हूं मैं। तो ये नेचर जो है, ये एक स्पोर्ट्समैन नेचर ना, मैं बोलूंगा कि जब तक कोई नहीं खेलता, जब तक कोई प्रैक्टिस या कोई भी गेम, कोई भी स्पोर्ट्स हो, जब तक नहीं आता वो सीख नहीं आता है। वो अर्ली ऑन स्टेज, हाँ वो अर्ली ऑन स्टेज मेरे में शायद आ गया था, वो सीख मुझे बहुत अच्छा मिला फुटबॉल ग्राउंड से, बहुत ही अच्छा है वो। ग्रेट ग्रेट। ओके, यू आर टॉकिंग अबाउट ISL। अच्छा, ISL से पहले वी विल कम अ बिट इनटू योर सोशल मीडिया वेंचर। राइट। ये चुल आपके दिमाग में कब से आया कि कंटेंट क्रिएशन करना है? लाइक what was the first step towards content creation? Social media. So I want to say that I'm a huge Bollywood lover. अच्छा. Like huge movie lover. Okay. And I'm a huge शाहरुख खान fan. अच्छा, okay. मैं पागल हूँ, मतलब पागल हूँ शाहरुख खान के लिए। Okay. तो बचपन से मतलब बहुत शाहरुख खान का मूवी देखना, जैसे कपड़े पहनना, बात करना, ये एक स्टाइल चलता है। You used to adore his mannerism. Very 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 much, very much. तो तब तो स्टाइल फाइल कॉपी मारना। उसके बाद मुझे लगा कि चलो हम भी कुछ बनाते। तो YouTube पे ना मैं पहले क्या करता था, ऐसे कुछ मतलब शॉर्ट फिल्म काइंड ऑफ मैं बनाना शुरू किया, मतलब दोस्त के साथ कि कुछ बात करके ऐसे कुछ, मतलब बहुत बेकार होते थे। लेकिन बहुत बेकार, मैं खुद भी नहीं देख सकता अभी। अच्छा। लेकिन वो बना था। तो तब से मुझे लगा कि YouTube पे बनाते, कोई नहीं देखता, 10-20 व्यूज आते थे। लेकिन उसके बाद मुझे लगा, कौन से साल में था ये था, मैं बोल रहा हूँ ये था 2016-17। ओके, हाँ। बहुत साल पहले, छोटा था, मतलब क्या करता था पता नहीं, पहली बार एंड्रॉइड फोन हाथ में आया। अच्छा, ओके। ये सब करता रहता था। उसके बाद मुझे बहुत, मतलब दिन YouTube बंद भी था, ये क्या कर रहा, कोई देख भी नहीं रहा है। लेकिन मेरे अंदर पे एक था कि YouTube पे कुछ करना है, YouTube करूंगा मैं। लोगों को, मुझे ये था कि लोगों को दिखाना है मैं कौन हूँ, ये तो मेरा एक माइंडसेट था, कुछ भी करके लोगों को दिखाना है, कि बस ऐसे ही मतलब क्या दिखाना है वो क्लियर नहीं था, वो क्लियर था, लेकिन कुछ दिखाना है, मैं कौन हूँ ये तो मैं दिखाऊंगा, कुछ भी करके। तो उसके बाद मुझे लगा कि क्या है मेरा स्ट्रेंथ, मतलब क्या दिखाओ मुझे। तो मैंने सोचा कि मैं तो बचपन से फुटबॉल ही खेलता है, तो मतलब मैं कुछ भी कर सकता हूँ तो फुटबॉल में ही कर सकता हूँ, मुझे वही आता है। मुझे समझ में आ गया कि मुझे और कुछ आता नहीं, एक्टिंग आता नहीं, कुछ नहीं आता है, बस फुटबॉल आता है। ओके, सो लेट्स डू इट इन फुटबॉल। तो फुटबॉल में मैं शुरू किया कुछ ट्यूटोरियल्स कि कैसे शूटिंग करना है, कैसे वार्म अप करना है, ऐसे नॉर्मल वीडियोस। तो थोड़ा बहुत तब मेरा टारगेट था कि चलो 100 व्यूज कंप्लीट करना है, 100 व्यूज हो जाए तो चलो, मेरा 100 हो गया, मेरा एकदम यूट्यूब बढ़िया चल रहा है। लेकिन कोई मोनेटाइजेशन नहीं, कुछ नहीं, ऐसे होते होते होते। लेकिन मुझे क्या था कि मुझे अच्छा लगने लगा कि एक भी कमेंट आ जाए, कि रास्ते में कोई एक भी बोल दे मुझे कि अरे आई नो यू, आई सॉ यू ऑन यूट्यूब, तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा बात था कि चलो मुझे पहचानने लग गया, चलो और डालते वीडियो अच्छा खासा। तो मैं धीरे धीरे ये करता रहा और करते करते आई डोंट नो हाउ, मतलब धीरे धीरे लोग सब्सक्राइब भी करते रहे कि चलो ये कर रहा है, ये नया कर रहा है। और ऑनेस्टली फुटबॉल को लेकर कंटेंट मैंने जब शुरू किया, और आज तक भी वैसे कोई बना नहीं रहा था। It was not very common. तो ये कुछ नया चीज मैंने शुरू किया था इन बंगाल। तो इससे शायद लोगों को कुछ लगा कि देखते, फॉलो करते, सब्सक्राइब करते इनका वीडियोस, तो वहां से शुरू हुआ। एंड ऑनेस्टली आई टोल्ड यू बिफोर दैट कि आई हैव रियली गुड फ्रेंड। तो मेरा एक दोस्त था संदीप, तो वो अपना आईफोन मुझे दे देता था। अच्छा। आई डिडंट हैव फोन, सो दैट टाइम वो मुझे आईफोन दे देता था पूरा दिन के लिए अपना फोन। सो मैं उससे शूट कर लेता था, एंड उसके बाद उससे एडिटिंग करके पोस्ट किया। एडिटिंग आप खुद करते थे? सब खुद। Okay. I did all alone. मैं YouTube से सीखा, सब YouTube से। See, knowledge is free. You can learn it from anywhere. Anywhere, absolutely. उसके लिए कोई अलग कोर्स की जरूरत नहीं होता है। तो हम एडिट करके उसको सब छोड़ते थे, धीरे धीरे कोई व्यूज आता है, कभी नहीं आता है, ऐसे करके मुझे लगा कि करते। Then I heard something about Instagram. अच्छा, इंस्टाग्राम पे भी होता है। इंस्टाग्राम कब शुरू किया? इंस्टाग्राम अगर आप बोले कि एकदम अच्छे से प्रोफेशनली शुरू किया तो इट वाज लाइक 2022 कि चलो नॉट वेरी लाइक ज्यादा दिन नहीं हुआ, लाइक 3 इयर्स। नो ज्यादा दिन नहीं हुआ। और 22 पे भी मतलब कोई ऐसा कुछ खास नहीं बनाता था, बेकार, मतलब बेकार। अभी भी देखता हूँ तो क्या
बेकार चीज बनाया, लेकिन उसके बाद मैंने शुरू किया कि चलो फुटबॉल रिलेटेड बनाते, ऐसे कुछ बनाते गया धीरे धीरे। वन थिंग आई सॉ इज दैट कंसिस्टेंसी पे हम कुछ भी करें, अगर नया चीज कोई यूनिक चीज हो कंसिस्टेंसी पे, सो दैट will be successful. I'll interrupt you a bit and ask you one question. When you used to make videos, जब आप videos बनाते थे, what was your primary target? कि मैं जो दिखाना चाहता हूँ वो मैं बनाऊं, या लोग क्या देखना पसंद करेंगे? Right. क्या what was the main thing in your head? कि क्या सोचते थे आप? I like genuinely I'm telling you that I love the process. Okay. मुझे इतना अच्छा लगता है शूट करना, मुझे इतना अच्छा लगता है एडिट करना, आई लव इट. Okay. लाइक मैंने एक शॉट दे दिया, मतलब स्किल किया, अराउंड द वर्ल्ड कर दिया, मेरे को लगता है कि उफ क्या किया मैंने, मतलब मुझे सच में खुद को, मैं सेल्फ ऑब्सेस्ड हूँ. हाँ. मुझे ऐसा लगता है क्या किया, एक एडिटिंग किया कमाल का, कुछ ऐसा लगा एडिटिंग, मेरे को लगा शायद वो है भी नहीं, लेकिन मेरे को लगा करेक्ट, मैं बोला उफ क्या कर दिया मैंने एकदम. तो मुझे सेल्फ ऑब्सेशन था, तो मैं खुद जो अच्छा लगता है वो मैं करता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ऐसा नहीं कि लोगों को, जब तक खुद को अच्छा नहीं लगेगा मुझे नहीं लगता कि लोगों को भी अच्छा लगेगा. खुद सेटिस्फाई होना है. और मैं सच बता रहा हूँ, मैं सेटिस्फाई आसानी से होता नहीं, एकदम नहीं. मैं आई टोल्ड यू बिफोर दिस कॉन्वर्सेशन, मैं 7 दिन पहला काम भी मेरे को अच्छा नहीं लगता. अभी मेरे को लगता है कि इससे बेटर कर सकता था. तो ये मेरे को हमेशा से ये था, एक परफेक्शनिस्ट माइंडसेट ये था. मतलब इतना बड़ा शब्द शायद अभी मतलब मेरे लिए सही नहीं है, उतना भी अच्छा नहीं करता, लेकिन मतलब ये था कि मेरे को अच्छा करना है, इससे भी अच्छा करना है. तो कोई पैसे के लिए, अगर पैसे के लिए कोई भी, मैं बोलूंगा कि अगर कंटेंट क्रिएशन कर रहा है, नहीं होगा भाई, शुरू में नहीं होगा. बहुत दिन जाएगा, कोई देखेगा भी नहीं वीडियो, तुमको कोई नहीं पूछेगा, लेकिन तब तुम्हारा जो पैशन है, तुम्हारा जो ऑब्सेशन है चीज को लेकर, वो काम आएगा. तब कोई पैसा आप पे कोई डोपामिन हिट नहीं कराएगा, तब आपका पैशन ही हिट कराएगा आपको. वो बहुत इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है. करेक्ट. So we'll come to the monetary aspect of content creation later. अच्छा, first tell me, आपको पहला breakthrough content creation में कब मिला? ये YouTube में मिला या Instagram में? I would say it was Instagram, because and like brand थोड़ा बहुत मिलने लगा है. जब 10,000 फॉलोअर्स हो जाता है, ब्रांड थोड़ा बहुत मिलने लगता है. कितना दिन में आपका 10,000 हुआ? बहुत दिन में. Like नहीं, आप 2 years. जब कंसिस्टेंटली पोस्ट करना चालू किए तब से 10,000 रीच करने में इन फुटबॉल आई थिंक लगा 1 साल से ज्यादा ही लगा, उससे ज्यादा लगा, क्योंकि फर्स्ट 10,000 इज डिफिकल्ट, दैट इज वेरी डिफिकल्ट. उसके बाद जल्दी हो जाता है शायद, लेकिन फर्स्ट 10,000 इज वेरी डिफिकल्ट. 1 साल से ज्यादा लगा. I would say after that you started getting brands, right? Yeah. First you will not get paid collaboration. First you will get barter collaboration. ये क्या होता है, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए. Barter collab होता है कि ब्रांड आपको उनका प्रोडक्ट भेजेंगे, और उसके बारे में आपको वीडियो बनाना है however you want, और उसके लिए आपको पैसा नहीं मिलेगा, बस वो प्रोडक्ट मिलेगा. कुछ भी प्रोडक्ट है, पैसा नहीं मिलेगा, इट विल नॉट बी पेड, इट विल बी बार्टर. सो दैट इज बार्टर. एंड उसके बाद आपका व्यू, आपका फॉलोअर्स जब ज्यादा हो जाएगा, देन इट विल बी पेड. वो आपको प्रोडक्ट भी देंगे, उसके साथ आपको पैसे भी देंगे. So that is the thing, that's the thing works in Instagram. So ऐसे करके पहले तो मुझे बार्टर मिलता रहा, बार्टर किया बहुत किया. फिर अदर ब्रांड नोटिस कि देखो ये तो कर रहा है ब्रांड प्रमोशन, so इसको ब्रांड आते. तो उसके बाद धीरे धीरे पेड मिला, बहुत कम पैसों से शुरू किया. तो वहां से जाकर what was your first amount? 500 रुपए. 500. अच्छा. Yes. I know. 500. I did I think a protein bar. Okay. Some protein bar brand, and that was my first paid one. उसका barter one किया था, लेकिन वो 500 था, और मैं तो 500 दे दिया. बस मैं तो एकदम खुश हो गया कि 500 तो बहुत है. और उसके बाद धीरे धीरे मैं बोलूंगा कि एकदम ब्रेक जो मिला है, एक अच्छा ब्रेक, दैट वाज आफ्टर निविया. अच्छा. Nivea is like the most famous brand in India in football. Correct. Wait, we'll come to Nivea, but let us deep dive into that feeling of getting the first 500. Okay. जब पहला पैसा मिला, whatever, भले ही 500 हो, 5,000 हो, that is secondary, but the first of anything is the most special. Very. वो जब मिला, because before that, because that was your only source of income. फुटबॉल से आप पैसा बहुत कम. Okay. So
घर पे क्या रिएक्शन था? व्हाट वाज द फर्स्ट रिएक्शन? फर्स्ट रिएक्शन तो पहले मुझे बार्टर बहुत मिलने लगा था। हाँ. ठीक है, वो 500 आने से पहले बार्टर बहुत, तो मेरे घर में ना ऐसे बड़ा बड़ा डिब्बे में बहुत प्रोडक्ट आते रहे। अच्छा. ठीक है, ओट्स, प्रोटीन, पीनट बटर, ऐसे कुछ आते रहे, लेकिन सब बार्टर, पैसे नहीं मिलता था। तो घर पे बोलते थे कि पैसे कब आएंगे, मतलब लोग प्रोडक्ट भेज रहे हैं तो पैसे भी भेजने बोलो। बोले कि ऐसे नहीं होता है, और भी आगे जाने दो, उसके बाद भेजेंगे। धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे होता है। सो उसके बाद जब पहली बार आया तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, आ रहा है, तो बोला कि चलो ठीक है, अच्छा दिया। अब देखते हैं इसको बढ़ाना है, अब बढ़ाना है कुछ भी, अब देखते हैं कितना आगे बढ़ता है वो। सो रिएक्शन वाज लाइक, ऐसे नहीं कि बहुत मिल गया, लेकिन हाँ वो खुश थे कि ऐसे ही कुछ होता है, बिकॉज ऑल दिस थिंग ना आर लाइक आउट ऑफ द बॉक्स थिंग। बहुत कि मतलब हम लोगों को क्या है कि एक स्टेप्स दिया गया है बचपन से सबको, पढ़ाई करो, डिग्री करो, नौकरी करो, yes. अगर ये मार्क्स आया तो वो कंपनी, अगर ये मार्क्स आया तो वो वाला कंपनी। राइट करेक्ट। हाँ. सो ये जो बैरियर है इसको तोड़ना है, ये मेरा बचपन से ही माइंडसेट था। तो ये तोड़ के जब कोई बाहर से पैसे आ रहा है, सो दैट इज अ बिग थिंग फॉर मी, कि चलो मैं ये एकदम मैट्रिक्स से तो मैं बाहर हो गया। करेक्ट। चलो अब मैट्रिक्स से बाहर जाके मैं 500 भी ला रहा हूँ तो ठीक है, चलो इट्स गुड फॉर मी। एब्सोल्युटली, आई एग्री। और दिन के आखिर में अगर सेल्फ सेटिस्फेक्शन हो ना आपके पास कि कितना पैसा आया, ये नहीं कि आप कैसे वो कमा रहे हैं, और आपने जो चाहा, आपने जिसके ऊपर इतना मेहनत किया, उससे आपको पैसा मिल रहा है, दैट इज डिफरेंट। सो वो फीलिंग मेरे को बहुत बढ़िया था कि इससे अब तो होगा, चलो अब शुरू होगा। एंड आई थिंक इट्स ऑल अ बाय प्रोडक्ट, जैसे लाइक मनी, फेम, कोई भी चीज लाइक टेंजिबली जो चीज दिखने में अच्छा लगता है, आपका इफ यू हैव अ गुड बॉडी, आपका एब्स है, अच्छा फिजिक है, तो वो भी दैट इज आल्सो अ बाय प्रोडक्ट ऑफ अ प्रोसेस, राइट, you followed. Right. The same with money. Right. If you followed a certain kind of process for a considerable period of time, money will come automatically. Right. So just for the viewers, because I know a lot of people who are remotely thinking of content creation, because बहुत आज के दिन में भी, although there are a lot of people on Instagram, YouTube promoting, but आज के दिन में भी I would believe 90% of the general population, या उससे भी ज्यादा शायद, they are in complete darkness when it comes to कि content creation में क्या हो सकता है, क्या इसका फ्यूचर है, यहाँ से पैसे कुछ हो सकता है, कैन यू मेक अ लिविंग फॉर योरसेल्फ। बहुत लोगों का ये दिमाग में अभी भी है, बिकॉज दे आर इन द डार्कनेस, उन लोगों को आइडिया नहीं है। सो फॉर देम जस्ट गिव अस अ रफ एस्टिमेट, अगर कोई भी जॉनर में suppose if I am working from suppose this is my day one, right, I start content creation and I started as a full time business कि मेरे को यही करना है, right, ठीक है, तो approximately how much money can, and roughly, although this is a very abrupt question, I know I'm asking because it depends on a lot of factors. Yes, it depends on a lot of factors, I know, right, तो भी like approximately जिनका पकड़ लीजिए YouTube में like 20,000 followers है या ऐसा कुछ, तो how much money can a average content creator make? हाँ, content creator right. make. So different platform पे like differently, YouTube अलग है, Insta अलग है, और Facebook अलग है. This is a very layman kind of a question I asked you. No. Because that's okay, but the thing is if I say about Instagram, तो Instagram पे क्या होता है कि Instagram पे पूरा आपके views and followers के ऊपर है. Okay. ठीक है, आप जो कंटेंट कर रहे हो, make sure your content is not cringe. First of all, cringe content नहीं होगा, और अब जो भी cringe content में तो ज्यादा views ये सब आता है. but views से सिर्फ ब्रांड नहीं आएगा. अगर आपका cringe, आप कोई भी प्रोफाइल उठा के देख लो Insta पे, cringe अगर कंटेंट होगा तो उतना ब्रांड प्रमोशन वो नहीं करेगा. Correct. That he can earn a lot of money from Facebook, because Facebook पे views से पैसा आता है, YouTube पे views से पैसा आता है. अच्छा, तो वहां पे आप क्रिंज कंटेंट बनाओ, वहां पे पैसा मिलेगा, एडसेंस से मिलेगा, कहीं से मिलेगा. रफली see, it's about the watch time mainly,
कि आपका वीडियो कितना वॉच टाइम पे you हुआ are है. active on Facebook as well, right? Yeah, I just started because I had no idea about Facebook, but I saw some videos and I think I should start in Facebook as well. So it's good. It's good. I think it's a good place to earn money. And वहाँ पर मैं बोलूँगा कि सिर्फ views के ऊपर कि roughly हम मान के चले कि if you have like 1 lakh or 2 lakh views, you will get like $10. That's very rough amount, I would say. ये ऊपर भी होगा और बहुत नीचे भी हो सकता है. It can be $1 or $20 as well. वो पूरा वॉच टाइम के ऊपर है, आपके वीडियोस के ऊपर है. Okay. और मैं बोलूँगा कि अगर इंस्टा पे ब्रांड चाहिए, so it will be like आपके व्यूअर्स, एवरेज व्यू, आपके फॉलोअर्स, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है. You have a lot of followers but you are not getting a lot of views. But you're getting views, you don't have a lot of followers. So ये problem होता है. I had a lot of views once. Like I have 2 million, 3 million rapidly. Like Okay. on my like every video like 500k, 1 million every. ये Facebook की बात कर रहे हो? नहीं, ये Insta पे. Insta पे. Okay, हाँ, sorry. But I had like that time I had 10,000 followers, 12,000 followers. People are not following. Like if I get 2 million views and from that I got only like 20 followers. So that is a thing. That's a very like बहुत ही अलग चीज है ये, लेकिन ऐसे होता है. वो व्यूज को फॉलोअर्स में कन्वर्ट करना. हाँ, वो करना है, वो आपके कंटेंट के ऊपर. और मुझे लगता है कि अगर हम पर्सनल एक्सपीरियंस और पर्सनल ब्रांड को शेयर करें तो लोग ज्यादा फॉलो करेंगे आपका लाइफस्टाइल. लोगों को देखना पसंद है. किसी का कामयाबी, किसी का फेलियर, किसी का लाइफस्टाइल, किसी का अमीरी, किसी का गरीबी, लोगों को ये देखना पसंद है. नॉट क्रिंज वे, इन अ गुड वे, इन अ पॉजिटिव वे. आई थिंक वी शुड मोटिवेट पीपल. करेक्ट. तो इन अ गुड वे ये करने से आई थिंक फॉलोअर्स ज्यादा आएगा. जितना फॉलोअर्स आएगा, व्यू आएगा, उसके ऊपर से पैसा आएगा. एंड आई वुड से इफ यू हैव लाइक अ बेसिक 20,000 फॉलोअर्स, roughly 20,000 subscribers, so you can make like it's depend upon brand again, I would say. But you can make like 10-20,000 you can make to start with. You can make it like ये ऊपर नीचे भी होगा. And one thing I want to say that this is not stable. Like ये stable नहीं है कि अगर किसी का mindset है कि मुझे इतना महीने पे चाहिए नौकरी की तरह, जॉब की तरह, वो नहीं होने वाला. नहीं, जितना भी बड़ा क्रिएटर बन जाओ आप, नहीं होने वाला. कभी आपका अच्छा आएगा, कभी नहीं आएगा, कभी 5,000 आएगा, कभी 10 आएगा, कभी 20 आएगा. वो बहुत फ्लक्चुएट होगा. ऐसे बहुत होता है कि 2 महीना हो गया, कुछ पैसा ही नहीं आया. हो सकता है, बट आपको ईयरली देखना है. बट आई रेकन कि इफ यू रीच अ सर्टेन नंबर, पकड़ लो आप मे बी 500k या 1 मिलियन तक अगर आप पहुंच गए, that's उसके बाद क्या होता है, तब भी ऐसा फेजेस आएगा. लेकिन क्या होता है, वहां पर एक ब्रांड से आपको इतना पैसा मिल जाएगा कि आपको जरूरत नहीं है. आपको नेक्स्ट 2-3 मंथ कुछ नहीं करोगे फिर भी चल जाएगा. आपका एक वीडियो मैंने देखा, वो यूट्यूबर्स फुटबॉल मैच शायद आपने डाला था. राइट. यूट्यूबर्स के साथ यू अरेंज्ड अ फुटबॉल मैच एंड दैट गॉट अ लॉट ऑफ व्यूज. आई सॉ अ लॉट ऑफ व्यूज दैट गॉट. I mean lot of views, like in my point of view. Definitely. That's not a lot of views. But I think it's a very big milestone. Very big milestone for me. Yeah, yes. Absolutely. At once, like 1,000 views, a lot of views for me. Like then I chose 10,000 views, a lot of views for me. So ऐसे करके मेरा वो I think 40,000 up ऐसे कुछ हुआ था. तो that's a big milestone for me. And for that मैं बहुत कोशिश किया कि सबको बुलाओ. और मैं चाहता था कि जिन लोगों को वीडियो में देख रहा हूँ, बहुत टाइम से देख रहा हूँ, इन लोगों को वीडियो देख रहा हूँ, उन लोगों से बात भी करूँ. मतलब ऐसा नहीं कि उन लोगों से ऐसे ही बात कर सकता हूँ. They are all big creators, like 5 lakh, 6 lakh followers. तो all are big creators. तो उन लोगों के साथ एक साथ जोड़ के एक मैच कराना, और that was a tough thing for me, but I did it. और उसके बाद एक बॉन्ड सा क्रिएट हो गया. और जब एक बॉन्ड सा क्रिएट हो गया, एक कम्युनिटी ग्रो होगा. तो वो कम्युनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑनेस्टली दे आर ऑल वेरी सपोर्टिव, वेरी गुड. मतलब ये बहुत लोग ऐसे भी है जो नहीं आए, ऐसे भी है. सब आए ऐसे नहीं, बट बहुत लोग आए भी जो नहीं आए. ऐसे नहीं कि वो सपोर्टिव नहीं है, दे मस्ट हैव सम वर्क और सब कुछ है. लेकिन मोस्टली दे आर वेरी सपोर्टिव. बहुत सपोर्ट किया, अभी भी बहुत सपोर्ट करता है वो लोग. तो वहां से मुझे एक बहुत अच्छा ब्रेक मिला. गुड. नहीं, यू हैव एन एडवांटेज बिकॉज मेरा क्या है, बिफोर स्टार्टिंग पॉडकास्ट या
बिफोर कमिंग टू सोशल मीडिया मैं उतना ज्यादा कंटेंट खुद कंज्यूम नहीं करता था, अभी भी नहीं करता हूँ, but my wife consumes a lot of content. Okay. So she knows a lot of people. I don't know a lot of people because I don't consume so much content. So if I ask you abhi ke din mein, okay, first let's talk about Bengal, then we'll go to India. Right. Who are your, according to you, the top 3 creators in Bengal today? Like any other field or कोई भी आपके आप according to you, who are the top like, notable creator? Okay. Let me reframe this question in a different way. Who are your top 3 favorite creators? Favorite creators. Okay. Like I will say, if you say like popular creator, I have to say other name. If you say my favorite creator, I have to give you another answer. First, First, let me answer you my favorite creator, top 3. Okay. First is me. Definitely. Okay. As I told you, I'm self-obsessed. First is me. Second, I would say there's one creator, Rahul De. Okay. I love his content. Like, great. He's really, really good, and he's a very good friend of mine as well. Okay. बहुत ही अच्छा बनाता है. और third, I can say Bongai. Because Bongai's video I used to watch. Bongai, because he made a milestone, of course. Bengal से YouTube शुरू किया, Bengal से बहुत आगे ले गया. He's a big name. Yeah, absolutely. I agree. Yes, I must say his name. तो बोलना ही पड़ेगा. So yeah, these 3 creators. Or if you want me to say like a popular creator, of course Bongai. There's Rahul, I told you. In female, I would say Preeti. Preeti is very nice. I love her content. And like all of them. What about nationally, like India mein, like who are your? Bhuvan Bam. I love Bhuvan Bam. Everyone loves Bhuvan Bam. Who doesn't love? Yeah, nationally Bhuvan Bam best. Okay, Ashish Chanchalani, I love. This too, मतलब सब देखते थे जब मैं कोचिंग में जाता था, जब ट्यूशन पे. तो भुवन बाम, आशीष चंचलानी, and I would say Raj Shamani. I love. Yeah. Raj is really good. Very good. बहुत अच्छा motivational kind of. बहुत अच्छा लगता है. So these 3 I can say बहुत अच्छा लगता है मुझे. और भी है, but these are the top 3. So a big inspiration of mine for coming into podcasting was Raj Shamani, and also Ranveer Alabadi as well. Beer Biceps. That's great. So these 2 people I used to follow a lot because and Ranveer, his contents previously when I used to see, he used to make completely different fitness kind of fitness, fashion, skincare, ये सब से अभी देखो कहाँ पहुँच गया. It's a very big achievement. Very nice. Okay, so Sarthak, let's talk about another big milestone of your life, which you said, which was meeting the great Ronaldinho. Yes. तो वो दिन के बारे में थोड़ा बात कीजिए. Yes. Oh my God, Ronaldinho. Oh, that was like life-changing, lifetime. I'll remember this situation. Ronaldinho. First, let me tell you how it started. Okay. So it all started with Nivea. So Nivea invited me there. So they said कि Ronaldinho and the. You're sponsored by Nivea, right? Yeah. Okay. So Ronaldinho, and I did a lot of brand promotion video for Nivea. Okay, great. So they asked me. So they said कि Ronaldinho is coming. The full Brazil team is coming. Brazil legend versus India legends match is happening. So I said कि Ronaldinho is coming. Are you serious? Ronaldinho. अच्छा. So कि ठीक है, मैं तो आऊँगा. कोई बात हुआ पूछने का, मैं तो पक्का आऊँगा. तो so I went, and after that first time I saw Ronaldinho, like he was insane. Like I don't know, he has an aura, the real aura he has. He get up, 100 people gets. So like he has a real aura. He just came for 5 minutes and he walks away. And that 5 minutes, it's just like knee shaking moment. Like that was something else. Uske baad, like that, there was a dinner. Achha. And that was a very close circuit dinner. Okay. So in that dinner, I was invited. Like I was with Nivea. तो वो डिनर पे मैं ये टेबल पे बैठ के डिनर कर रहा हूँ और मेरा एक टेबल बाद रोनाल्डिनियो बैठा है. मैं इधर देख रहा हूँ, मतलब एक टेबल बाद. और लाइक आई
कैनॉट टेल यू कि मेरा क्या हालत हो गया. ऑफ कोर्स मैं खा नहीं पा रहा था. रोनाल्डिनो बैठा है, मैं क्या खाऊं? मैं खाना खाऊंगा उसको देखूं, मैं ऐसे हाँ करके देख रहा हूँ उसको कि क्या चल रहा है रोनाल्डिनो. फिर उसके बाद तो ही केम एंड फोटोशूट के लिए आया. फोटोशूट के लिए रोनाल्डिनो आया और एक टेबल करके बुलाया. सो वी वेंट एंड मैं एकदम जाकर रोनाल्डिनो के पीछे खड़ा हो गया. सो रोनाल्डिनो के साथ फोटोशूट हुआ, कुछ प्रेस फेस फोटोशूट किया. देन आई गिव माई मार्क पेन टू हिम. उसके बाद बोला कि इधर ऑटोग्राफ, बस ऐसे ही इशारा किया तो वो ऐसे ऑटोग्राफ करने लगा. पेन काम नहीं कर रहा है. ठीक है, मैंने बोला कि अभी क्यों काम नहीं कर रहे हैं मारकर. ठीक है, यही समय बचा था. फिर मैं जल्दी से लेके फिर कर रहा हूँ. फिर करके वो ऑटोग्राफ दिया इधर और उसके बाद बस मैंने उसका पैर छुआ ऐसे. तो मुझे लगा कि चलो पैर नहीं छूंगा रोनाल्डिनो का. मतलब he was insane. Like, did he understand पैर छूना मतलब क्या होता है? Yes, he did this to me. Oh yeah, I saw. Yes. So he did this to me and that's like I say कि क्या हो गया मेरे साथ. Ronaldinho, I touched Ronaldinho's feet. Like he is one of those player like in the planet, I would say. One of those great player in this planet. So it's a big thing for me. So stand behind like Ronaldinho. क्योंकि आसपास भी नहीं, मतलब कभी पहुंच पाऊंगा कभी सोचा भी नहीं था. मैं बोलूंगा कि कंटेंट क्रिएशन कुछ भी करूं, कंटेंट क्रिएशन से ये जो मुझे मिला है रोनाल्डिनो के साथ खड़ा होने का मौका, एक ही साथ एक ही रूम पे, मतलब रोनाल्डिनो के 100 मीटर्स में मैं कभी पहुंच पाऊंगा मैंने सोचा नहीं था. मैं खड़ा रहता तो दैट वाज जस्ट अ अमेजिंग मोमेंट फॉर मी. देन आई सॉ हिम प्लेइंग इनसाइड द स्टेडियम. Insane. That was insane. Yeah. I have seen, like, of course, a lot of people are seeing you. That you have started this ISL series. Yes. Day 1 of preparing for the ISL, day 7, like X series आपने चालू किया. So ये series के पीछे आपका motive क्या है? What is the main motive behind starting this series? Okay, I'll tell you honestly what is the situation. The situation is after COVID. एक क्या होगा कि एक ब्रेक हुआ है क्योंकि कोविड में लीग सब बंद था और उसके बाद की इंफ्रास्ट्रक्चर पे ऐसे हो गया कि सिचुएशन आपके पास 1 या 2 ईयर गैप हो गया. उसके बाद आपको कोई नहीं लेगा. जैसे इट्स सेम ऑन एवरी फील्ड आई वुड से. आप कोई जॉब में गए, बोला कि आपको बोलेगा कि लास्ट ईयर एक्सपीरियंस, सो देयर वाज नो एक्सपीरियंस सो देयर इज नो जॉब. तो ये सिचुएशन हो गया. तो उसके बाद एक ब्रेक जब हो गया था तो मतलब थोड़ा सा मेरा अब बोल सकते हैं डाउनफॉल हो गया इन माय फुटबॉल करियर. बट आई केप्ट ट्राइंग, आई केप्ट प्रैक्टिस. और उसके बाद क्या हुआ कि मुझे इंजरी भी हो गया 2 ईयर. बहुत बेकार इंजरी हो गया. तो वहां से मुझे बहुत मतलब डाउन हो गया. उसके बाद आई स्टार्टेड ट्राइंग. लेकिन क्लब्स को वैसे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था मुझे. कि जैसे मैं एक डिटच हो गया एक समय से, उससे मुझे एक मतलब मुश्किल हो गया क्लब्स को मिलना. और नाउ द थिंग इज, ऑल द थिंग इज एजेंट ओरिएंटेड कि इफ यू गेट अ गुड एजेंट यू विल गेट अ गुड क्लब. नाउ द इंडियन फुटबॉल कंडीशन इज लाइक दैट. If you get a good agent, you can get a good club. So there is no good academy, no good ground in Kolkata, I would say. Like if there is, like that is only for playing the professional matches. You cannot do practice or training station in a good ground. तो ये situation मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ. So I started trying reaching out to the people. और मैं देख रहा हूँ कि मतलब how did you reach out to them? I tried mailing them. Okay. I gave letter to players कि मैं भाग के गया बस में कोशिश करके लेटर दे के आया कि just give me one opportunity, give me one chance, I want to give a trial. लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता था. मतलब कभी भी नहीं आया कि रिस्पॉन्स. बट आई स्टार्टेड ट्राइंग दिस एंड आई डिड ट्राइंग दिस. और मुझे ये लगा कि मैं ये कर सकता हूँ अपने फील्ड पे जिसमें मेरा कंटेंट है, वो मेरा इधर पोटेंशियल है रीच करने का. दैट आई सॉ कि इधर मुझे व्यू मिलता है और व्यू से मैं कर सकता हूँ लोगों तक रीच करना है. मुझे बताना है कि मुझे खेलना आता है. आई कैन डू प्रैक्टिस. अगर मुझे कोई स्किल्स नहीं आता है, मुझे कुछ पोजिशनिंग नहीं आता है, आई कैन डू हार्ड वर्क. इफ यू टीच मी आई लर्न इट. आई कैन डू एनीथिंग. I can do hard work. That thing I can say. If you tell me to run for 4 hours, I can run. If you tell me, just give me one opportunity. That is my message. So इसके लिए मुझे लगा कि social media is एक बहुत बड़ा platform, powerful है. Definitely. तो
इसलिए मैं ये सीरीज शुरू किया. मैं एवरीडे नहीं कर पाता क्योंकि मेरा खुद का ट्रेनिंग है और हर दिन ट्रेनिंग पे शूट करना मतलब ट्रेनिंग से फोकस आउट हो जाना. करेक्ट. मैं कभी कभी वीकली एक बार करता हूँ ये. और इससे मैं कोशिश कर रहा हूँ लोगों तक पहुंचने का. और लेट्स सी कोई हेल्प मिले यहाँ से या ना मिले. सो लेट्स सी, मेरा यही मानना है. सार्थक, यू हैड मेंशन बिफोर कि कभी कभार क्या होता है, मेहनत सिर्फ काफी नहीं होता इन अ लॉट ऑफ केसेस, एंड स्पेशली इन अ country like India. Of course, I respect my country, and I believe that there are a lot of opportunities for people. But you had faced a lot of challenges when it came to getting a club or enrolling yourself into a good club. So, talk about that part a bit. Okay, so the basic thing is when you have to get into a club, you have to give trial. Bilkul. So, trial is the main thing. So if you see the other structure of trial in Europe or any other countries like who are developing football very much, so they have like a lot of phases, like phase 1, phase 2, phase 3, lot of phases trial. So in first phase they see like you're running, the second phase they'll see you're shooting, in third phase they'll see your match. So अलग-अलग phase होता है. But in India that is not the situation. In India आपको बस 10 मिनट के लिए एक मौका मिलेगा, वो भी मतलब जैसे ग्राउंड, यू नो द ग्राउंड सिचुएशन. सो वही ग्राउंड पे आपको एक मौका मिलेगा. अब 10 मिनट पे कुछ कर पाए करो, नहीं कर पाए नहीं कर पाओ. आप सोर्स के साथ आए तो अच्छा है, सोर्स के साथ नहीं आए तो आपको नहीं होगा. सो ऑल दिस थिंग्स आर हैपनिंग इन इंडिया. सो ये बहुत एक बड़ा चैलेंज है कि इवन आई एम टेलिंग यू, वंस आई डिड हैट्रिक इन अ ट्रायल. उसके बाद भी मुझे चांस नहीं दिया गया. ठीक है. सो ऐसे सिचुएशन होता है. सो एक टाइम था मुझे ऐसे लग गया कि ट्रायल पे जा रहा हूँ, बस ठीक है ऐसे ही जा रहा हूँ, बस मैच प्रैक्टिस करूंगा वापस आ जाऊंगा, चांस तो मिलेगा नहीं क्योंकि किसी के थ्रू नहीं गया, किसी के सोर्स नहीं गया. सो ऑल दिस थिंग्स हैपनिंग इन इंडिया. ये मैं बोलूंगा जब तक ये चेंज नहीं होगा ना तब तक मतलब हम बहुत पीछे रह जाएगा. ग्राउंड कंडीशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, हम ये जगह पे बहुत पीछे रह गया. वी हैव अ लॉट ऑफ टैलेंट. आई एम टेलिंग यू, मैं मानता हूँ कि मैं जैसा खेलता हूँ मुझसे लाखों गुण बेहतर बहुत प्लेयर्स है और वो मेरे जैसा आधे भी नहीं खेल पाए. लाइक मैं अभी कुछ भी नहीं खेल पाया, शायद मुझे और भी आगे खेलना है, लेकिन मैं जितना अभी तक खेल पाया हूँ मुझसे काफी अच्छा प्लेयर्स है जो वहां तक भी नहीं खेल पाए बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द अपॉर्चुनिटी. बस यही. तो अपॉर्चुनिटी अगर मिलेगा इंडिया पे, आई थिंक बहुत जल्दी से ग्रो होगा. तो ये जो पार्ट है ये बहुत ही मतलब ट्रेजिक है, ये बहुत ही डिप्रेसिंग है मैं बोलूंगा. आई एग्री कंप्लीटली. तो फिलहाल तो आपका अच्छा चल रहा है फ्रॉम द सोशल मीडिया. बाय द ग्रेस ऑफ गॉड यू आर ग्रोइंग एट अ वेरी गुड रेट, एंड आई रेकन दैट यू आर अर्निंग गुड मनी आल्सो, व्हिच इज I don't know about that, but yeah, मतलब मैं एक बात बोलूंगा कि I started all alone, so I started with 500 rupees and आप कहाँ से कहाँ पहुँचे? That is the main thing. That I can say कि मुझे यहाँ से भी बहुत आगे जाना है. And you're very young and you're new, तो बहुत टाइम है आपके पास. टच वुड की ऐसे कुछ हो, लेकिन ग्रेट. हाँ मतलब मुझे यही है कि बस करना है तो करना है, प्लान बी नहीं है, बस यही करना है मुझे. Let's see. अच्छा, ये ब्रांड्स में because I have seen you're working with Nivea, you're working with Muscle Blaze, these are big brands. Yeah. और भी बहुत brands है आपका भी. Like how many brands right now you're actively working with? 4-5 and others are not, like brands आपको एक कॉन्ट्रेक्चुअल मिलता है कि एक लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट मिला और एक आपको वीडियोस वाइज मिलता है कि 2 वीडियोस के लिए, 1 वीडियोस के लिए, ऐसे कुछ. So yeah, 4-5 you can say. Okay. So how did you manage to get the big brands? ये कब आना चालू हुआ आपके पास? Like they are coming like automatically when you do good, when your videos are good, getting good views, or production is good. So they directly message you, right? They directly message me, or some of the agencies message me. Okay. तो agencies के through बहुत आएगा, agencies के through बहुत मतलब बेकार डील भी आएगा, बहुत अच्छा डील भी आएगा. ये आपको चुनना है, ये आपको चूज करना है. So everywhere a negative thing will happen or positive thing will happen.
सो वो हमको चूज करना है बस. तो एजेंसीज के थ्रू ज्यादा दर आता है और डायरेक्ट ब्रांड भी बहुत मैसेज करता है, तो ऐसे आपको मिल जाएगा. You have to just focus on doing the proper video, proper like whatever you can do best, just do it. So it's the boring thing which gives you the result at the end of the day. Yes. I'm telling you, my lifestyle is very monotonous. If you like sit with me for a day, it's very monotonous. मेरा भी it's very boring. बहुत boring दिन है. My friends are chilling with friends, others they're like I'm doing nothing. I think here I can resonate with you a lot because maybe you're also health conscious. I'm also health conscious. So if you're health conscious, automatically you get separated from the crowd. Yes. आप मैट्रिक्स से बाहर. हाँ, मैट्रिक्स से बाहर हो गए आप, क्योंकि आप एक तरीके का खाना खाते हो, एक तरीके का रेजिम, आपका स्लीप इम्पोर्टेंट है, आपका खाना इम्पोर्टेंट है, आप एक like it becomes a process of you. Yes. And मैं बोलूंगा कि वो जो मैट्रिक्स ब्रेक करने में एक मजा है ना, definitely there is a fun. मतलब मुझे 100% there is a fun, trust me, कि सब बिरयानी खा रहा है मैं नहीं खाऊंगा. हाँ, there is a fun, there is a kick, there is a fun, absolutely. मैं करूंगा. सब ये सीरीज से जा रहा है, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, मैं दूसरा से जाऊंगा. there is a fun. And sometimes you're completely delusional and most of the times people will think that you're crazy. No, crazy. हाँ, और मेरे साथ क्या होता था like और मेरा क्या था पहले से ही कि सब लोग लाल पहन रहे, मतलब मेरे को तो लाल नहीं पहनना है. राइट. नील पहनूंगा या हरा पहनूंगा वो बाद में, पर लाल नहीं पहनना है. वेरी मच एग्री. तो ये भी मेरा बचपन से वेरी मच एग्री. ये बचपन से होना बहुत जरूरी है मुझे लगता है. एब्सोल्युटली. इससे मुझे बहुत, मैं तो बोलूंगा कि इससे मुझे बहुत बेनिफिट मिला है पूरा लाइफ. मेरा क्या गोल है, हमेशा से मेरा ये गोल है कि जो 99% लोग कर रहा है बस वो ना करूं. एब्सोल्युटली. मैं आई रेट समवेयर कि you just need to have clarity in life, what you have to do and what you don't have to do. ठीक है, तो मेरा ये क्लैरिटी बहुत पहले से था कि मुझे ये नहीं करना है. नहीं करना है तो मैं नहीं करूंगा, बाकियों की तरह कुछ नहीं करूंगा. बाकी अगर मतलब बिरयानी खा रहा है अभी नहीं खाऊंगा मैं, ग्रेट, अभी तो मैं नहीं. तो ये बहुत हेल्प किया मुझे. Yes, so like the great Bruce Lee said, I don't fear the man who has practiced 1,000 moves. Right. I fear the man who has practiced one move 1,000 times. So with that, we come to an end of this episode. It was lovely having you, Sarthak. Thank you. All the best, and we'll of course be in touch. So, thank you. Thanks a lot. Thank you so much for having me, and it was great talking to you. Thanks, and man. I think कुछ mindset भी हम लोगों का same हुआ है. Absolutely. And बहुत अच्छा लगा बात करके. Thank you. Just thank you. And okay. We'll keep in touch. Absolutely. Yeah. Okay. So if you like this video, don't forget to like, share, and subscribe to my channel and wait for the next episodes. Until then, take care, stay healthy, and keep thinking deep.